দেশে দেশে ঘুরে শেষে আনলাম কাবলি চানা স্পেশাল চানার আসল চা MDH চানা মশলা আসল মশলা yes yes MDH ওয়াকফ অ্যাক্টের 40C আর্টিকেল, সেখানে বলা হচ্ছে ওয়াকফ বোর্ড যে কোনো সম্পত্তির দিকে তাকিয়ে যদি ভাবে এটা তাদের সম্পত্তি, তাহলে সেটা তাদের সম্পত্তি হবে। সেই সম্পত্তির মালিকের দায়িত্ব হবে কোর্টে আদালতে গিয়ে বলা যে না স্যার, এটা তো ওনাদের নয়, এটা আমার সম্পত্তি। প্রমাণও তাকেই করতে হবে, তার দায়। দিল্লিতে গোটা পার্লামেন্ট ভবনটাকে, সংসদ ভবনটাকে ওয়াকফের সম্পত্তি বলে দাবি করে বসে রয়েছে দিল্লি ওয়াকফ বোর্ড এবং ইউপিএ সরকার। এই সমস্তটাই নাকি অলরেডি দিয়ে রেখেছে ওয়াকফ বোর্ডকে 2013 সালে, এমনটাই জানাচ্ছেন কিরেন রিজিজু। অর্থাৎ যদি কিরেন রিজিজু যা বলছেন তা সত্যি হয়, তাহলে গোটা সংসদ ভবনটা ইউপিএ সরকার থাকলে ওয়াকফ প্রপার্টি হতো, ওয়াকফ সম্পত্তি হতো। সেখানে ওয়াকফ সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ড যা মনে করতো তাই হতো। এবার এই রাজ্যে আসি। এই রাজ্যের রাজভবন থেকে শুরু করে গোটা ধর্মতলা, কেএমসি বিল্ডিং, সমস্তটাই ওয়াকফ প্রপার্টি বলে দাবি করা হয়েছে। এমনকি যেখানে ফোর্ট উইলিয়ামে দেশের সেনা, এই দেশের সেনাবাহিনীর এই ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দপ্তর, সেটাও নাকি ওয়াকফ প্রপার্টি। এই সমস্তটা ওয়াকফ সম্পত্তি। তার সেটাই যদি হয় তাহলে তো আর কিছুই বাঁচলো না। প্রশ্ন হচ্ছে, আজ সংসদে ওয়াকফ বিল পেশ এবং সেই বিলের তীব্র বিরোধিতা করছে ইন্ডি জোট, তৃণমূল, কংগ্রেস সহ অন্যান্য দল। আর বিজেপি বলছে এই বিলটি দেশ বাঁচানোর বিল। আজ অমিত শাহ সংসদে দাঁড়িয়ে এই বিল পেশের প্রথমেই কি বললেন শুনব। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई। অমিত শাহ বলছেন সবার সাথে আলোচনা করে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি, সেখানে আলোচনা করার পর ক্যাবিনেটের সেখানে পাস হওয়ার পর সেটা এসছে সংসদে এবং এখানে আলোচনা চলছে। কেন আপত্তি? কারণ জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটিতে তো প্রত্যেক দল ছিল, তারা তাদের বক্তব্য রেখেছে। এমনকি কিরেন রিজিজু সংখ্যা তুলে বলছেন যে এই সবচেয়ে বেশি আলোচনা এই বিল নিয়ে হয়েছে সংসদীয় ইতিহাসে। কিন্তু বিরোধিতা করছেন। কেন করছেন দেখব, প্রশ্ন করব। কল্যাণ ব্যানার্জি বলছেন এই বিল মুসলিম বিরোধী বিল, মুসলিমদের ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে, মুসলিমদের থেকে সব ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে, যেমনটা বলা হয়েছিল সিএ এর সময়, মনে আছে তো? কোন মুসলিমের নাগরিকত্ব গেছে কি? প্রশ্ন তুলছেন কিরেন রিজিজু। কি বলেছেন কল্যাণ ব্যানার্জি শুনবো। The bill hits basic structure of the constitution. How the Limitation Act will be applied? If the Limitation Act will apply, so many disputes will come. This is the intention of the government. Open, सब खुलो। अभी खुल दो रास्ता, इंडिया में चला लगा दो, हिंदू मुस्लिम लगा दो। यही तो इंटेंशन है उन लोग का। क्या होगा? This is not correct. This is completely bad. The proposed Waqf Act proposes significant. In Hemant Wazir sir has also criticized the concept of adverse possession. বলছেন কল্যাণ ব্যানার্জি হিন্দু মুসলিম লাগা দো, কিন্তু হিন্দু মুসলিমের বিষয় কি? তার কারণ হচ্ছে এই দেশ ছাড়াও একাধিক দেশে তো ওয়াকফ নেই, যেগুলো ইসলামিক দেশ, যেমনটা সিরিয়া, ইজিপ্ট, সুদান, লেবানন, জর্ডান, টিউনিশিয়া, টার্কি, লিবিয়া, ইরাক, ইরান, এখানে তো ওয়াকফ নেই। তাহলে সেখানে হিন্দু মুসলিমের বিষয় আছে কল্যাণ ব্যানার্জি? প্রশ্ন থাকছে।
কিরেন রিজিজু তথ্য তুলে বললেন ওয়াকফ আইনে এমন ধারা রয়েছে যেখানে যে জমির দিকে তাকাবে ওয়াকফ সেই জমি নাকি তাদের হয়ে যাবে, এমনটা তো সরাতেই হতো। কি বলছেন কিরেন রিজিজু, শুনুন। जो सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। चंद लोग अपने के लिए अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ गई। अब किसी प्रॉपर्टी को कैसे आप क्लेम कर सकते हैं? आज पूरा हमारे देश का क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो कैथोलिक चर्च काउंसिल के लोग, भारत चर्च ग्रुप के लोग, केरला में हो या देश भर में आज पुकार के क्यों कह रहा है कि वक्त संशोधन बिल जल्दी पारित होना चाहिए। আমার আজকের প্রশ্ন, আমার অগ্নিবাণ কিশলয়ের অগ্নিবাণে আজকে আমি প্রশ্ন করছি, ইন্ডি জোটকেই প্রশ্ন করছি, কারণ তারাই বিরোধিতা করছে। প্রশ্ন নেব, আজকের অগ্নিবাণ নেব। ইন্ডি চায় দেশের নিয়ন্ত্রণ ওয়াকফের হাতে থাকুক, কারণ ওয়াকফ গোটা দেশের পার্লামেন্ট, সংসদ ভবন, দেশের এই রাজ্যে ফোর্ট উইলিয়াম অথবা রাজভবন সমস্তটাই তো ওয়াকফ প্রপার্টি বলছে। তাহলে কি তাদের হাতে চলে যাক, এমনটা চায় ইন্ডি জোট? প্রশ্ন করব, আমি যাব আলোচনায়। এই মুহূর্তে যারা উপস্থিত রয়েছেন আমার সঙ্গে তাদের কাছে যাব সরাসরি এবং প্রশ্ন করব, আলোচনায় ঢুকবো, ডিবেটে ঢুকবো। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন রাজশ্রী লাহিড়ী, বিজেপি মুখপাত্র। আমার সঙ্গে রয়েছেন মণিশঙ্কর চ্যাটার্জি, আইনজীবী তথা তৃণমূলকে সমর্থন করেন। আমার সঙ্গে রয়েছেন মানস ভট্টাচার্য, গবেষক। আমার সঙ্গে রয়েছেন ঝন্টু বড়াইক, অধ্যাপক। আমার সঙ্গে সুমন রায়চৌধুরী রয়েছেন, কংগ্রেস মুখপাত্র। আমি প্রথম প্রশ্ন করব রাজশ্রীকে। রাজশ্রী, হঠাৎ করে দেশে হিন্দু মুসলিম করার জন্য তোমরা যে এই ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে আসছো, এর ফলে যে হিন্দু মুসলিম বিভাজন করছো, কল্যাণ ব্যানার্জি বলছেন মুসলিমদের মধ্যে ভাগ করছো, এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তোমরা কেন করছো? দেখুন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলছেন না বলছেন তাই নিয়ে আমরা লিস্ট ইন্টারেস্টেড, কারণ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্থভাবে বলছেন না অসুস্থভাবে বলছেন বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু আবার হাত ফাত ভেঙে ফেলেন পার্লামেন্টে, কাঁচের গ্লাস ফ্লাস ভেঙে যায়। যাই হোক, 1995 সালে কংগ্রেস ওয়াকফ সংশোধনীর আনে এবং আজকে দাঁড়িয়ে যেটা 8 ঘন্টা আলোচনা হচ্ছে, আপনারা পার্লামেন্টে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সবাই টেলিভিশনে, 8 ঘন্টা আলোচনা হবে, ডিবেট হবে, তারপরে ভোটাভুটি হবে, এটা কিন্তু 95 সালে কংগ্রেস অ্যালাউ করেনি। বিনা কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই এখানে পাশ করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। যাই হোক, এবার আসছি, আপনারা এটা শুনলেন যে ওয়াকফ বোর্ডের আওতায় কংগ্রেস পার্লামেন্টের জমিটাই দিয়ে দিচ্ছিল। কিছুদিন আগে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বলেছেন গোটা দক্ষিণ কলকাতা ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি, মানে কালীঘাটের মন্দির, মমতা ব্যানার্জির বাড়ি, অভিষেক ব্যানার্জির বাড়ি, সুব্রত বক্সির বাড়ি, সুব্রত মুখার্জির বাড়ি, মালা রায়ের বাড়ি, যত নেতা আছে তৃণমূলের, ফিরাদ ববি হাকিমের বাড়ি, সবার বাড়ি হচ্ছে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি। আমার বাড়ি দক্ষিণ কলকাতায় ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি। ওদিকে আপনার ঢাকা কালীবাড়ি থেকে আরম্ভ করে যত কালীবাড়ি যা মন্দির আছে সব ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি। তো যাই হোক, এটা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো বক্তব্য নেই এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়দেরও কোনো রকম কোনো বক্তব্য নেই। ওয়াকফ সংশোধনী আইন আনা হয়েছে যাতে একটা ক্ল্যারিটি থাকে, ট্রান্সপারেন্সি থাকে, পরিষ্কার ব্যাপার থাকে। আজকে দাঁড়িয়ে বহরা, পাসমিন্দা, আহমেদিয়া, এই সেকশন অফ মুসলিমস যারা আছেন তাদের কোনো রকম ইনক্লুশন এখানে এতদিন ওয়াকফ বোর্ডের মধ্যে ছিল না, তাদের রিপ্রেজেন্টেশন ছিল না, সেগুলোকে আনতে হবে। ওয়াকফ বোর্ডের যে যাবতীয় যা সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি এক শ্রেণীর লোক দখল করে বসে আছে। আমাদের কলকাতায় আমরা জানি নবাব ওয়াজেদ আলী শাহর বিপুল সম্পত্তি মেটিয়াবুরুজ কলকাতা বন্দর চত্বরের, সমস্তটা ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি। সেখানে তৃণমূলের পার্টি অফিস গজিয়ে উঠছে, ওকে বিক্রি করে দিচ্ছে, সে তাকে বিক্রি করে দিচ্ছে, অমুকটা বিক্রি করে দিচ্ছে। আজকে দাঁড়িয়ে হিন্দু মুসলমানের কথা বলছে, একবারের জন্য কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি এটা বলতে পারলেন যে আজকে ভারতবর্ষ সেকুলার বলে তো ওয়াকফ বোর্ডের মতো আছে? ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তিটা কি? নবাব বাদশাদের এবং জমিদারদের যারা পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল তাদের সম্পত্তি নিয়ে তৈরি আছে। এই মুহূর্তে সংখ্যাটা হচ্ছে 9.4 লাখ একর জমি ওয়াকফ সম্পত্তির আন্ডারে রয়েছে। এক্স্যাক্টলি রাজস্বী, আপনি জানেন না তো? এক্স্যাক্টলি এটা আছে, 7 লাখ প্রপার্টি রয়েছে। আমি বলে দিই, পূর্ববঙ্গের রানী, ভবানী, ময়মনসিংহ, নাটোর, দীঘাপাতিয়া ইত্যাদি সমস্ত যে রাজা জমিদারদের সম্পত্তি ছিল সেগুলো সমস্ত তো শত্রু সম্পত্তি আইনে নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা তো ওইটা। বেশ, আমি সুমনদার কাছে যাওয়ার আগে আমি একটা বাইট শোনাবো, যেখানে আমাদের দেশের সংসদ ভবন, যেখানে আইন প্রণয়ন হয়, আমরা ভোট দিয়ে পাঠাই, সেটাও ওয়াকফ প্রপার্টি, সেটাও ওয়াকফ বলা হয়েছিল। কি বলছেন কিরেন রিজিজু, শুনুন।
1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था, एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। সুমনদা, আপনারা শুধুমাত্র দেশের সংসদ ভবন ওয়াকফকে দিয়ে দিচ্ছিলেন না, 1995 সালে ওয়াকফ অ্যাক্ট এনে আপনারা অন্য যে সিভিল কোড তার চেয়ে বেশি অধিকার দিয়েছেন, ওভাররাইডিং ক্যাপাসিটি দিয়েছেন ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালকে। অর্থাৎ ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের বক্তব্য অন্যান্য সিভিল কোর্টের উপর হবে। ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের বক্তব্য, মেকিং দ্য ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল ডিসিশনস অ্যাবভ এনি সিভিল কোর্ট, নো সুট অর লিগাল প্রসিডিং শ্যাল লাই আন্ডার এনি সিভিল কোর্ট। 1995 সালে আপনাদের ওয়াকফ অ্যাক্ট। আপনারা কি চাইছেন, গোটা দেশটা ওয়াকফ চালাবে? না, একটু আগে বিজেপির প্রতিনিধি বলছিল 1995 সালে কংগ্রেস একটা ওয়াকফ সংশোধনী এনেছিল এবং সেখানে নাকি কংগ্রেস আলোচনা করতে দেয়নি। এখানে বিরাট আলোচনা হচ্ছে, এটা ঠিক ওই রকম ব্যাপার আর কি। আমার সিস্টার ইন ল না ছোটবেলায় বলতো, অঙ্কে সবাই না আমার মতন কম নম্বর পেয়েছে। আরে কংগ্রেস আলোচনা করতে দেয়নি, তোমরা আলোচনা করতে দাও। আচ্ছা, অমিত শাহ পার্লামেন্টে বলছেন, আমরা একবার দ্রুত শুনবো, ফিরবো আলোচনা। সংসদে অমিত শাহ বলছেন। ओके एक मिनट चेक कराता हूँ। हाँ एक सेकंड चेक कराते हैं, एक सेकंड में करा रहे हैं, चेक करा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 2 मिनट लगता है कभी। सुबह से जो चर्चा चल रही है उसको मैंने बारीकी से सुना है। मुझे लगता है या तो निर्दोष भाव से या तो राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां कई सदस्यों के मन में भी है, और कई सारी भ्रांतियां सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश भर में फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। बिल पर चर्चा का जवाब तो माननीय रिज्जू साहब देंगे। मैं कुछ बातें यहां रखी है, इसको मेरी समझ के हिसाब से क्लैरिफाई करने का जरूर प्रयास करूंगा। माननीय, ये वक्त एक अरबी शब्द है। वक्त का इतिहास मान्यवर कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है, और आजकल जिस अर्थ में वक्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। मान्यवर, वक्फ का समकालीन अर्थ, अभी जो अर्थ हम समझ रहे हैं, वो इस्लाम के दूसरे खलीफा श्री उमर के समय में अस्तित्व में आया। एक प्रकार से इसकी आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोनमेंट है, और जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है, बिना उसको वापस लेने के उद्देश्य से वहां वक्फ की रचना करें। इसमें दान देता है, वो शब्द का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता मान्यवर, किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है।
मान्यवर, इसी विषय पर ये सारा जो बहस चल रहा है, चल रहा है। भारत का जहां तक सवाल है, दिल्ली में सल्तनत काल के प्रारंभ में मुइज़ुद्दीन घोरी के समय पर पहली बार वक्फ अस्तित्व में आया। अंग्रेजों के जमाने में 1863 के धार्मिक दान अधिनियम से चलता था। बाद में चैरिटेबल प्रॉपर्टीज एक्ट 1890 से चला। उसके बाद 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट अस्तित्व में आया। तब तक ये सारी प्रक्रियाएं चैरिटेबल एक्ट के तहत चलती थी। मान्यवर, आजादी के बाद वही एक्ट को 1954 में वक्फ के केंद्रीकरण के लिए बदला गया। 95 में वक्फ न्याय अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना की। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामी होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है मान्यवर। कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है मान्यवर। अब मैं इसको मान्यवर बाकी सारे धर्मों के साथ कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं दखल किया है। मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, वक्फ जो है वो हमारे यहां ट्रस्ट एक्ट है, इसमें ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट को बनाते हैं वो ट्रस्टी होते हैं और एक मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं। वक्फ में वाकिफ होता है, वक्फ होता है और मुतवल्ली होता है। ये सारे इस्लाम के अनुयायी हैं। अरे भाई, आप कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं क्योंकि इसका वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब आप उसका विरोध कर रहे हो, तो आप तो वक्फ में भी नॉन इस्लामिक आदमी चाहते हो। मान्यवर, क्या कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम का
इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि मान्यवर इसकी उत्पत्ति ही इस्लाम के सिद्धांतों से हुई। अब मान्यवर वक्फ धार्मिक हुआ, वक्फ बोर्ड नहीं हुआ, वक्फ परिषद भी नहीं हुई। अरे सुनो भाई, मान्यवर ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी जो होते हैं, जो चर्च होगा तो क्रिश्चियन होंगे, पारसी भी होंगे, पारसी के लिए वो ट्रस्ट होगा, तो हिंदू होगा तो हिंदू के लिए। अब चैरिटी कमिश्नर हम कहेंगे कि भाई मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले, उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100-100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिली भगत चली वो चलती रहे, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। और मान्यवर, मैं आज आपको बताना चाहता हूं क्या स्थिति हुई है मान्यवर। सबने कहा, रिपीटेशन भी होगा, परंतु मैं कहना चाहता हूं मान्यवर कि वक्फ के 2013 में जो अमेंडमेंट्स आए, अब बिल किरण भाई का है, मगर मैं कह सकता हूं कि वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था, 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। हिमाचल में वक्फ की संपत्ति बताकर उस पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया। 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 12 गांव पर वक्फ का स्वामित्व हो गया तब तमिलनाडु में। और मान्यवर, तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर। ये जब मंदिर आपको मौका मिले जब अपनी बात कह देना, प्लीज बैठिए। मान्यवर, कर्नाटक की
आपको मौका मिले अपनी बात कह देना, आप भी बहुत मिसलीड करते हैं। बैठिए गृह मंत्री जी। मान्यवर, कर्नाटक की मणिपट्टी समिति का रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, खड़े मत हो जाना। ये मणिपट्टी समिति का रिपोर्ट है। 29,000 एकड़ भूमि वक्फ की बिजनेस के उपयोग के लिए किराए पर दे दी। मान्यवर, 2001 से 12 के बीच 2 लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति निजी संस्थानों को हस्तांतरित कर दी 100 साल की लीज पर। मान्यवर, बेंगलुरु में उच्च न्यायालय में बीच में पढ़ना पड़ा, 602 एकड़ भूमि को जब्त करने से रोकना पड़ा। विजयपुर कर्नाटक के होनवाड़ गांव की 1500 एकड़ भूमि पर दावा कर उसको विवाद में डाला और 500 करोड़ की संपत्ति जिस भूमि का मूल्य है वहां 5 स्टार होटल को महीने 12,000 रुपए के किराए से दे दी। अब मान्यवर ये कहते हैं कि इसका हिसाब किताब न करो, इसकी देखरेख न करो। भाई ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये गन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं, ये इसको रोकने के लिए। और इनके जो ठेकेदार बैठे हैं मान्यवर, ये यहां गरज गरज कर बोलते हैं, खुद को समझे बगैर बोलते हैं, कुछ समझ कर बोलते हैं। उनको लगता है कि इससे हम जीत जाएंगे। मान्यवर, कर्नाटक में दत्तापीठ के मंदिर पर क्लेम किया, तालीपरंबा 75 साल पुराने एक दावे के आधार पर 600 एकड़ जमीन का दावा किया और ईसाई समुदाय की भी ढेर सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। मान्यवर, आज देश के कई गणमान्य चर्च और चर्च के समूह वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनको लगता है कि इसका विरोध कर हम मुस्लिम भाइयों की सिंपैथी जीतकर अपनी वोट बैंक पक्का करेंगे, उसमें कोई फायदा नहीं होगा अखिलेश। इसलिए कि 4 साल में मुस्लिम भाइयों को मालूम पड़ जाएगा कि कानून तो उनके फायदे में है। और इसके साथ ये दक्षिण के सारे जो सांसद बोल रहे हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे चर्च को मान्यवर नाराज कर रहे हैं, उनको पता नहीं, सारे चर्च को नाराज कर रहे हैं। सारे चर्च ने रिजोल्व किया है कि हम खिलाफ इसका हम समर्थन करते हैं। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। परंतु वक्फ की संपत्ति, इसका रख रखाव ठीक से हो रहा है नहीं। वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है, निजी उपयोग के हिसाब से। सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। अब इसकी संपत्ति को आप 12,000 रुपये में 5 सितारा होटल बनाने के लिए दे देते हो, ये उचित है क्या? भाई वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए, जो अनाथ बच्चे हैं उसके कल्याण के लिए करिए।
मान्यवर, ये करने की जगह बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम करिए। लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर और इनकम 126 करोड़ रुपया। रेलवे की जितनी जमीन है जिसमें हजारों करोड़ लाखों करोड़ का रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है और इनकम 126 करोड़ रुपए। मान्यवर कहते हैं कि इनकम का क्या उद्देश्य है? मान्यवर, मैं दादा की टेंशन समझ रहा हूं, ये बंगाल के मुसलमान भी सुन रहे हैं, तो उनको टेंशन होना स्वाभाविक है। मान्यवर, लालू प्रसाद जी, आज आरजेडी के सारे सदस्य बोले जब 2013 का अमेंडमेंट आया, मैं लालू जी का तो पूरा पढ़ना चाहता हूं, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी, सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब सब लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था एक कड़ा कानून लाइए। मान्यवर शरीफुद्दीन शरीफ, उन्होंने कहा मंत्री जी समझते हैं कि शायद इससे मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, लिहाजा मुसलमान लोगों ने भी खुद ही तबाही मचाई है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसके लिए आप सख्त कानून बनाइए, उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाइए और जो उनके कब्जे किए हैं वो जमीनों बेचकर गरीब और तलाकशुदा मुस्लिम बहनों का कल्याण करिए। इसके बाद श्री हमीदुल्लाह सैयद लक्षद्वीप से थे, उनका भी इसी टोन का भाषण है। और मान्यवर, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, 2013 का जो बिल कांग्रेस पार्टी लेकर आई, इसके विरोध में इनके समर्थकों ने जो कहा था, मान्यवर ये है। और क्या होगा भाई इससे? पारदर्शी ऑडिट होगी, आज ऑडिट ही नहीं हो रही। रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की सिस्टम नहीं है, वो होगी, रिपोर्ट देनी पड़ेगी, बैलेंस शीट जमा करनी पड़ेगी, ऑडिट होगी, कैग के रिटायर्ड ऑफिसर ऑडिट करेंगे और मान्यवर पारदर्शिता आएगी। इससे क्यों डरना चाहिए किसी को? पारदर्शिता से क्यों? और वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद, इसका कोई ऑर्डर हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकते। आपने तो कर दिया था कि ये ऑर्डर को कोई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकता, पूरा संविधान वहां समाप्त कर दिया मान्यवर। और मान्यवर, हम तो इसको कहते हैं कि कोई भी चैलेंज कर सकता है कायदे की अदालत में। इस देश में संविधान का राज है, ग्रीवेंसेस जिसका भी हो कोर्ट में जा सकता है। 2013 में जिसकी भूमि हड़पी, इसके ग्रीवेंसेस को भी कोर्ट के फोरम से बाहर करने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया। मान्यवर, एक अफवाह और फैला रहे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस सदन में बोलने के वक्त जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर ये कानून का पहला पेज और तीसरी तक धाराएं भी पड़ी होती तो इसमें स्पष्ट लिखा है, ये कानून का अमल जिस दिन पारित होने के बाद भारत सरकार नोटिफिकेशन बाहर निकालेगी, उस दिन के बाद होगा। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, मगर मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा। मान्यवर, ये कह रहे कलेक्टर क्यों रखा है? मुझे एक बात बताओ भाई,
जो बता सकते हैं, अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है वो हमारे देश में कौन तय करता है? सबको मालूम है, कलेक्टर करता है सर, रेवेन्यू ऑफिसर वही है। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आया, आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। अरे ऐसा नहीं होता भाई, कलेक्टर को पूछना पड़ेगा सरकारी संपत्ति है या नहीं है, इसकी जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ढेर सारे मंदिर बनते हैं, बने भी है, बनेंगे भी, ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, सरकारी संपत्ति पर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते मान्यवर। जहां वक्फ की घोषणा होती है वो भूमि सरकारी है या नहीं है वो सत्यापित करना ही चाहिए, और कलेक्टर के अलावे इसको कोई सत्यापित नहीं। मान्यवर, इन्होंने मैंने पहले भी बताया मान्यवर, कोर्ट को भी रास्ते से निकाल दिया। मैं बाद में बात करता हूं मान्यवर, ये मान्यवर एक उपयोग के आधार पर वक्त की समाप्ति। मान्यवर ये कह रहे हैं कि सैकड़ों सालों से वहां प्रैक्टिस है। अब वो तो वक्फ रजिस्टर हो गया, आपने घोषित कर दिया, वक्फ में रजिस्टर भी हो गया, अब इसका सवाल नहीं है। मगर सैकड़ों साल की प्रैक्टिस, मुगलों के समय की प्रैक्टिस आज घोषित की जा सकती है क्या? अगर वहां नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग देखते होंगे, कब्रिस्तान होगा लोग देखते होंगे, दरगाह होगी तो लोग देखते होंगे, और घोषित भी हो चुका होगा, रजिस्टर भी हो चुका होगा। अब अगर आप वक्फ घोषित करना है तो उसको ऐसे नहीं कर सकते मान्यवर, अधिकृत करना चाहिए। मान्यवर, जो दूसरा सुधार लेकर आए किरण जी, वो ही है कि धारा 36 में वक्फ संपत्तियों को बिना किसी स्पष्ट प्रक्रिया से, मालिकी की प्रक्रिया से पंजीकृत नहीं किया जा सकता। मान्यवर, अपील का प्रावधान वर्तमान में अधिनियम में ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये दृष्टिभ्रम खड़ा कर रहे थे गोगाई जी कि हाईकोर्ट में जा सकते, हाईकोर्ट में सिविल सूट नहीं जा सकता, रीट के अधिकारों का उपयोग कर हाईकोर्ट में जा सकते हैं। सिविल सूट में ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है मूल मालिक को, आपने सिविल सूट को खत्म कर दिया था। रीट के जुडिक्शन बहुत सीमित है, हम सब जानते हैं कि ये सीमित कर दिया गया था, आप भी जानते हो, मगर आपको वोट बैंक चाहिए। मान्यवर, ये हमारा स्पष्ट सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार का, कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाए। कानून न्याय के लिए होता है, कानून लोगों के कल्याण के लिए होता है। इन्होंने कहा कैसे कैसे कानून आए हैं, मैं बता देता हूं सब। अभी कांग्रेस के महासचिव और माननीय सदस्य कह रहे थे क्या कानून आ रहे हैं, सब किस प्रकार के कानून आ रहे हैं। मान्यवर, इसी सदन में नरेंद्र मोदी सरकार ही महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून लाया। इसी सरकार में पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। मान्यवर, इसी सरकार में बजट जो आए इसमें गरीबों को गैस, शौचालय, पानी, 5 लाख तक का बीमा, 5 किलो अनाज, बिजली और घर दिए गए। मान्यवर, और कन्वर्जन कानून की बात करते थे और हंसते हंसते कहते थे कर्नाटक सरकार कन्वर्जन कानून लेकर आई है। सबसे पहला कन्वर्जन कानून उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार लेकर आई।
मगर उस वक्त कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चलती थी, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलती थी। मध्य प्रदेश और ओडिशा में सबसे पहला कन्वर्जन के खिलाफ कानून कोई लाया तो कांग्रेस पार्टी लाई, और मुझे गर्व है मेरी पार्टी की सरकारें कन्वर्जन पर कानून लाती। माने और सबको अपना धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, कोई शौक से करे, मगर लोभ, लालच, भय, इससे धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। किसी गरीब के पास खाना नहीं है, खाना देकर उसका धर्म बदला दोगे? कोई थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका धर्म बदला दोगे? ऐसे नहीं होगा मान्यवर। देशे देशे घूरे शेषे अनलम काबली चना स्पेशल চানা রাসুল চা MDH চানা মশলা আসল মশলা yes MDH নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।